In the last class, we had discussed what is biasing. Okay, can anyone tell what basically biasing is? Just Way definition. of connecting a battery. Yeah, definitely. When a battery is connected across the terminal of a diode, it is called biasing, and it is can be of two type: forward bias and reverse bias. Means we can connect a battery in two different ways. One is forward biased, another is reverse biased, and today we will discuss these two type in detail. Okay, so let's start with forward biasing. When we bring p type, let's wait just a minute. This is how we are applying a battery. So two ways are there. One way we can connect p type with the positive terminal, or we can connect n type to the positive terminal. Depending upon that, this biasing is defined. In the forward biasing, p type is connected to the higher potential, and in the reverse biasing, n type is connected to the higher potential. So if p type is connected to higher potential, then it is forward biasing. And if n type is n side is connected to higher potential, then it is reverse biasing. So we are going to discuss these two in detail. This is the circuit diagram of biasing. Okay, p type, n type, and a battery. This is a reverse biasing diagram because p type is connected to lower potential and n type is connected to higher potential. This is the forward biasing, the second circuit. So if we talk about forward bias, here the p region of the diode is connected to the positive terminal of the battery or the high potential, and n region is connected to the negative terminal of the battery or low potential. Write down this definition. This is one example of forward biasing. P side is connected to plus 3 volt, N side is connected to plus 1 volt. Make this diagram. These are very important diagram because they will help you to answer different kind of questions. This is again forward biasing. This is minus 3 volt. This is minus 5 volt. So minus 3 is a higher potential as compared to minus 5. This one, this end is connected to minus 5 volt. This end is earth. Earth means 0 volt. Okay, again 0 volt is greater than 5 volt. These all are the examples of forward biasing. This one, this is connected to 2 volt. This is connected to 0 volt. So these are the 4 different examples of forward biasing. In the forward bias of PN junction, the P side should be at a relatively higher potential compared to N side. The same thing which we have described in examples. Example में जो बताया है, वही चीज यहाँ पे एक बार reinforce की गई है. ठीक है? P side higher potential पे होनी चाहिए, तभी हम forward biasing कहेंगे. सबसे पहले क्या होता है? द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज. ऐसा क्यों होता है? Why it will get decreased? Because from both the side, from one side the electrons are repelled, from the other side holes are repelled, and they all move toward the barrier potential. They all move toward the depletion layer, due to which the layer width of the depletion layer decreases. If V is applied voltage, VB is the barrier potential, then the potential in the forward bias will be
VB minus V in the initial condition. As it will increases, V becomes greater than VB, the current start following. Until this condition, VB is less than V. Sorry, उल्टा लिख, सेम चीज लिख दिया मैंने ये. V is less than VB. No current will flow because barrier potential doesn't allow the electrons and holes to cross. But once the applied voltage is greater than the barrier potential, the electrons and holes start crossing the barrier. And when they cross the barrier, it will allow the, और क्योंकि width कम हो जाती है, so due to less width, low resistance will be there. And it will act as a conductor. For an ideal diode, the forward resistance is almost zero. For an ideal diode, the forward resistance is almost zero. It will allow the current freely. The flow of current is mainly due to diffusion of majority charge carrier, and it is of the order of milliampere. So the majority current will be diffusion current here. Just the direction of the current is from P to N side. ये भी एक सिंपल पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस. इट इज फ्रॉम P to N साइड. डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी करंट कैसे है? डिफ्यूजन ही तो हो रहा है बेटा. जब होल इधर जाएगा तो डिफ्यूज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डिफ्यूज करेगा. बट उसी टाइम पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है, और होल्स क्रिएट होते रहेंगे, क्योंकि जब करंट पास करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो होल क्रिएट होंगे. इसलिए तो सर एक डिप्लेशन लेयर एक ही रहेगी? हाँ, डिप्लेशन लेयर सेम रहेगी. डिप्लेशन लेयर केवल विड्थ कम हो जाएगी. ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस. सो इट विल डिक्रीजेस, और विड्थ कम होने के साथ साथ बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है. अब रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, उल्टा कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने. जब उल्टा कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इधर वाला नेगेटिव इन होल्स को इस तरफ पे अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका ओवरऑल विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, और पीट इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको क्रॉस करना और मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो गया, विड्थ बढ़ गई है, वहां पे क्या हुआ था, विड्थ कम हो गई थी, और जब ये बढ़ जाएगी, ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा. आइडियल डायोड के लिए जो रिवर्स बायस्ड का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है. जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, और यहाँ पे ये जो करंट है ये किसकी वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. और आपको पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन कौन है. इस साइड पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और इस साइड पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं. तो उनकी वजह से ये करंट है. वहां पे इससे पहले केस में फॉरवर्ड बाइजिंग में कौन था करंट का रीजन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. फॉरवर्ड बाइजिंग में कौन था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. और यहाँ पे कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. क्योंकि जो होल्स होंगे वो यहाँ पे रिपेल होंगे, इस साइड जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल होंगे, तो वो इसको क्रॉस कर जाएंगे इस रिपल्सन की वजह से, क्योंकि बाहर का रिपल्सन ज्यादा है बजाय कि अंदर के रिपल्सन के, तो वो क्रॉस कर जाएंगे, उनकी वजह से करंट होगा. और जो करंट का ऑर्डर होगा वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा.
ये सर्किट डायग्राम है इसका। P region of the diode is connected to the negative terminal of the battery, N region is connected to the positive terminal of the battery. ये डेफिनेशन है आपकी। In reverse bias the PN junction diode, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। These are the different examples of reverse biasing. सारे के सारे रिवर्स बाइज्ड हैं। यहाँ पे देखेंगे पी साइड -2 वोल्ट पे है, लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू -1 वोल्ट। अगेन -5 वोल्ट इज ए लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू -3 वोल्ट। -5 वोल्ट is a lower potential as compared to 0 volt. 0 volt is lower potential as compared to 2 volt. So all are the examples of reverse biasing. The width of the depletion layer and barrier potential increases. V is the applied voltage and VB is the barrier potential. Then the potential in the reverse bias RB will be VB plus V. It is high resistance connection and it acts like an insulator. For an ideal diode, the resistance is infinity. It will act like an open circuit. The current in germanium diode is of the order of microampere and in silicon diode is of the order of nanoampere. The flow of current is mainly due to drift of minority charge carrier. So, अगर आप फॉरवर्ड बायस की बात करें, वहां पे कौन सा करंट था? डिफ्यूजन करंट। और रिवर्स बाइजिंग में कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट करंट। तो ये दो तरह के करंट्स यहाँ पे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट in this case will be from N side to P side. वहां पे P side to N side थी, यहाँ पे N side to P side होगी। And the current in this bias is called reverse saturation current और लीकेज करंट। इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट भी बोलते हैं, ये जो करंट होता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की लीकेज की वजह से होता है। क्योंकि जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, पोटेंशियल बैरियर के अंदर से लीक हो जाते हैं, दूसरी साइड चले जाते हैं। हालांकि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो है वो बड़ी हुई है, इसलिए इसको लीकेज करंट भी हम लोग कहते हैं। तो ये सब चीज एक ही मीनिंग है। रिवर्स करंट बोलो, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलो, लीकेज करंट बोलो, ड्रिफ्ट करंट बोलो, ये सब क्या होगा? रिवर्स बाइजिंग में होगा। Diode is a unidirectional electronic device. Unidirectional means it only allow current during the forward bias when applied potential is greater than the barrier potential. एक unidirectional है, and this property is very important property. This unidirectional property. That's why a diode is used as an rectifier. अभी हम करेंगे आगे चल के हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, बट उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट ओनली अलाउ द वन वे फ्लो ऑफ करंट। बैक नहीं मार सकता है करंट इसके अंदर से, केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और वो कब जाएगा? जब ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा। The current that flow across the junction of a diode due to difference in the concentration of holes and conduction electron on its either side is called diffusion current. And the current that flow due to the through the diode due to electric field is called drift current. जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो होगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा, जो कंसंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से होगा वो डिफ्यूजन करंट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
अभी हमने देखा था फॉरवर्ड बायस में जो है डिफ्यूजन करंट होता है और रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट होता है। नोट दीज पॉइंट्स डाउन। एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी? फॉर एन ऑर्डिनरी डायोड I current in the diode is E minus VB upon R plus RF। अब ये क्या है? E क्या है? EMF ऑफ द बैटरी। VB क्या है? बैरियर पोटेंशियल। R क्या है? कैपिटल R लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। और स्मॉल RF जो हमें लिखा है वो क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। RF इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन है ऑर्डिनरी डायोड में करंट के लिए। व्हेन VB, हाँ ये तो मीनिंग ही लिखे हुए जो हमने अभी बताए हैं, सेम इक्वेशन को केवल एक्सप्लेन किया है। VB बैरियर पोटेंशियल है, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, RF फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है। ये इक्वेशन बस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। Power developed across the diode is VB into I. Power developed across the resistor is E minus VB upon I. The minimum kinetic energy required by a hole to diffuse from P side to N side is kinetic energy minimum is equal to E into VB। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बैरियर पोटेंशियल दिया होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दी होगी और पूछा जाएगा कि ये होल जो है या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज कर जाएगा क्या। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन EVB है तो डिफ्यूज कर जाएगा। मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। If in forward bias the minimum kinetic energy required by a hole to diffuse from P to N side, K E minimum E into VB। In reverse bias, the minimum kinetic energy required by a hole to diffuse from P to N side will be E into VB plus V। बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू बैरियर पोटेंशियल। All the above formula are true even for an electron diffusing from N side to P side। जो होल के लिए हमने लिखे हैं वो सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटी सी 2-3 resistance of an ideal diode in forward biased condition is 0. 0। So A Zero, will be the sir. right answer। In the middle of the depletion layer of a reverse biased PN junction diode, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा या पोटेंशियल 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम होगा ना बेटा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा बेटा, मैक्सिमम कैसे हो जाएगा? वो एक बिल्कुल इस तरह का केस बनेगा ना, इधर पे पॉजिटिव है इधर पे नेगेटिव है।
तो इनके बीच का जो ये एक तरह से आपकी वो दो प्लेट्स बन गई हैं। तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो मैक्सिमम का तो पंगा ही खत्म हो गया, ओनली पोटेंशियल की बात होगी। नेक्स्ट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? V वोल्टेज, I करंट, कैरेक्टरिस्टिक मींस ग्राफ। जब हम किसी भी डायोड के लिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल ही भी है बेटा आप लोगों का, ठीक है, PN जंक्शन डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए। So this is in the case of forward biased. This region is for the forward biasing, this region is for the reverse biasing. फॉरवर्ड बायस में अगर आप देखेंगे करंट जो है हम मिली एम्पियर के ऑर्डर का लेते हैं, तो ये स्केल मिली एम्पियर में होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बहुत लो होगी, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। जबकि रिवर्स बायस में वोल्टेज बहुत हाई होगी, 20, 40, 60, 80, 100, और करंट बहुत लो होगा, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। तो ये जो रीजन है ये रिवर्स बायसिंग का रीजन है ये, और ये जो रीजन है ये फॉरवर्ड बायसिंग का रीजन है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये इस तरह का एक ग्राफ बनेगा बेटा, इस ग्राफ को हम VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। दिस ग्राफ इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस में देखिएगा आप, सबसे पहले जो है करंट ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, ठीक है, और ये तब तक जीरो रहेगा जब तक वोल्टेज जो है बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो 0.7 के बाद ये एकदम से बढ़ गया है, तो 0.7 मतलब ये जो डायोड यहाँ पे यूज हो रहा है उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। तो जैसे ही उससे ज्यादा बढ़ा तो करंट एकदम से इंक्रीज हो गया और मिली एम्पियर के ऑर्डर का हो गया। बट रिवर्स बायसिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जब रेजिस्टेंस ये हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो एक करंट सेटअप होता है और इसको हम ब्रेकडाउन करंट बोलते हैं, जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। यहाँ पे तो ये बहुत कम है, ये तो आपका रिवर्स बायस करंट है, बट जब ये एकदम से वैल्यू बढ़ गई है इसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये ब्रेकडाउन भी दो तरह के होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट से लेस रह गई है तो और ज्यादा डिस्कशन आज